सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सुनीता माता जी प्रारंभ करें भजन। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। छोटा सा भजन। और ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। नेकी की मन में जोत जला ले, और जीवन में कर ले उजाले। और ना तो देर है ना देर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। मुख से कुछ ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु घर भर देगा। और ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है। और ना तो देर है और ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। हमें ही विजय सुन चलना ना आए, प्रभु तो सभी को चलना सिखाए। वो तो जरा भी ना तरसाए, हमको ही दिल से कहना ना आए। और ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। और ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। तेरे कर्मों का ये सब फेर है। धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। दीपालिका जी नमस्ते। बहुत बढ़िया। अपने आज मैं श्रुति के घर पे ही आई हुई हूँ। अच्छा, वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, बेटी को विद्वान बनाया है, प्रचारिका बनाया है, बहुत बढ़िया। पर परमात्मा की कृपा है, वही सद्बुद्धि देते हैं जी, सब अपने आप ही सब हो जाता है। ये धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। हाँ, शीतल जी रानपुरा, आपको क्या भजन गाना है? मुंबई शीतल जी अभी आए थे। ठीक है, गुजराती में गाऊं कृष्ण का भजन? हाँ हाँ बिल्कुल, गाइए गाइए। जरूर। केडी माता जी, आपको श्रुति जी का प्रवचन के बाद आप 5 मिनट लेना भजन के लिए। नमस्ते, सबको सादर प्रणाम। कृष्ण का भजन है
गुजराती में आप लोग सुनेंगे, आपको समझ पड़ेगी। कृष्ण जब द्वारिका में रहते थे वो टाइम की बात है। कृष्ण कन्हैयो वसे द्वारिका धाम માં ગોમતી બિરાજે ઘરને આંગણી ગોમતીજી ગાજે ઘરને આંગણી સોનાના સોગઠાને હીરાની ચોપાટ કૃષ્ણ રૂકમણી રમે સોગઠે રમતા રમતા વાલાની આંખો ભીંજાણી મનડા ઉદાસી બન્યા શ્યામના પૂછે રૂકમણી રાણી સાને લુભાણા કે મરે આંખોમાં આંસુ આવ્યા સોનાની દ્વારિકા ને રીતિ સીધી આંગણી અષ્ટપટ રાણી આપે હાજરી નોકર ને ચાકર પ્રભુ હાથી ને ઘોડા કે મરે દુઃખના આંસુ આવ્યા કહે કનૈયો સુનો રૂકમણી રાણી સુનો અમારા મનની વાતડી આજરે અમને અમારા જસોદામાં સાંભળ્યા યાદ આવ્યું રે ગોકુળ ગામડું માતા યશોદા જ્યારે જમવા બોલાવતા દોડી ગોકુળ ગલીઓમાં ચાલતો દોણી પકડીને માતા માખણ ખવડાવતા ખોડે બેસીને લાડ લડાવતા ખપે બેસાડી વાલા બાબા વ્રજમાં લઈ જાતા ગાયોને ચારતા શીખવાડતા વ્રજની ગોપી જ્યારે રાવરે આવતી સાચી ખોટી માને સંભળાવતી માતા યશોદા માને સોટીથી મારતા પછી પોતે આંસુડા સારતા જે દિવસે માએ મને હાંડણીએ બાંધ્યો તે રાતે માતા નોતા ઊંઘ્યા વહેલી સવારે માતા યશોદાજી જાગિયા વાલા કરી ખોડે બેસાડિયા તોરડાના વટમાં માએ મલમ લગાડ્યો ધ્રુસકે માતા રોડિયા
તે દિવસે માએ મારી માફી રે માગી, નહીં રે મારવાના વચન આપ્યા. આવી માતાને હું તો કેમ જ વિસરું, કેમ રે ભૂલું ગોકુળ ગામડું. સોનાની દ્વારિકા મને કડવી રે લાગે, વાલું લાગે ગોકુળ ગામડું. છપન ભોગ મને ભલે ધરાવતા, માખણ ને રોટી લાગે મીઠડી. વાલી ગાયોને મારા વાલા ગોવાળિયા, યમુનાનો વારો કેમ વિસરું. વાલી વાસલડી છૂટી જે દિનથી હાથથી, તે દિનથી જીવવું લાગે દોયલું. રાધાનું નામ મારી જીભે જડાયું, રડતી રાધાને કેમ વિસરું. શ્વાસે શ્વાસે મારી રાધા પોકારે, તેને તર છોડી વ્રજમાં એકલી. અક્ષર હોય તો વાંચી બતાવું, રુદિયાના દર્દ કેમ સંભળાવવા. રાણી રૂકમણી તમને કેમ રે સમજાવવા, ગોકુળના તોલે નાવે દ્વારિકા. ગોકુળ જઈને કોઈ દેજો સંદેશો, નંદ યશોદાજીના કાનમાં. એકે દિવસ માતા આવો ન ઉગિયો, તમને સાંભળ્યા વિના પોઢિયો. આટલું કહેતા વાલાની આખલડી વરસી, જગને હસાવનાર રડિયો. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયો વસે દ્વારિકા ધામમાં, ગોમતીજી ગાજે ઘરને આંગણે. નમસ્તે. ખૂબ સરસ ગુજરાતી પૌરાણિક જગતનું ભજન હતું, સરસ ગાયું. હા, અભી મેં મુંબઈમાં ક્યાંથી? શીતલબેન, મુંબઈમાં જી ક્યાંથી? જી જી. મુંબઈમાં છો? હા, ક્યાં? વાસીમાં, નવી મુંબઈ. નવી મુંબઈ. તમે તમે ક્યાં છો? અંધેરી. અચ્છા અચ્છા, ઓકે ઓકે, મળશું કોઈ વાર. કોઈક વાર વાસી આવીશું ને કોઈક વાર અંધેરી પણ આવીશું, મુલાકાત લઈશું આવો તમારી. આવો, ચોક્કસ ચોક્કસ. જરૂર આવજો. હવે આપણે શ્રુતિજીને સાંભળીએ. श्रुति विजय सेतिया ने आपने सांभळीए। श्रुति जी। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, दीपालिका जी, साधुवाद आपको भी, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजन कृष्ण जी का भी माता जी सुना रहे थे।
थोड़ा समझ से परे था, लेकिन भाव उनके बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल थे। तो इसी प्रकार हम अच्छे अच्छे भजनों को सुने, सभी को समय दें भजन बोलने का, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा भजन। हम लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जीवन में सांसारिक कार्य कभी समाप्त नहीं होते, संसार का कार्य कभी समाप्त नहीं होता, हम लोग कुछ ना कुछ कार्यों में लगे ही रहते हैं, तो हम कभी भी ईश्वर भक्ति के लिए समय नहीं निकालेंगे। एक बार मैं सुन रही थी किसी कार्यक्रम में कि व्यक्ति ने कहीं जाना है घूमने के लिए, तो वो 5 बजे उठ रहा है, मान लीजिए सुबह सुबह कहीं उसने जाना है, उसके बाद वो नहाएगा, अपना नाश्ता भी करेगा और उसने हवन भी करना है, तो कई ऐसे काम जो करता है वो उसने करना है व्यक्ति ने। परंतु चांस ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति थोड़ा देर से उठा। अब देर से उठने से उसने बाकी कार्य तो किए, परंतु परमपिता परमात्मा का यज्ञ जो उसने नहीं किया, अपना नहाया, अपना नाश्ता किया और अपना भाग लिया। उसने वो संध्या में या यज्ञ में जो समय लगाना था वो नहीं लगाया, परंतु अपने सांसारिक कार्य में लगा रहा। तो ये शिकायत हम करते हैं कि सांसारिक कार्य तो कभी खत्म होते ही नहीं है। हम ईश्वर भक्ति में अपना समय नहीं लगा रहे हैं, परमपिता परमात्मा में अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं। तो आज का जो प्रत्येक मानव एक ही शिकायत करता है कि मेरा ध्यान, मन जो है ना, मेरा मन वो ध्यान में नहीं लगता। जब भी पूजा पाठ करने बैठता हूँ, आराधना करता हूँ, संध्या ध्यान में बैठता हूँ, तो मेरा मन जो है इधर उधर भागने लगता है। तो कहते हैं मन जो है एक मोम की तरह है। जिस प्रकार मोम को पिघलाकर किसी भी आकार में आप ढाल सकते हैं, उसी प्रकार इस मन को के मोम को मतलब उसी आकार में आप ढाल सकते हैं, ढाला जा सकता है। इस पर आप चाहो तो संसारिक विचारों का प्रभाव डालो या संत महात्माओं की संगति का प्रभाव डालो, ये मन जो है उसी सांचे में ढल जाएगा, क्योंकि मन जो है ना मोम के समान जड़ है। अब ये मन है संसारिक बंधनों में पड़ जाएगा तो जीवन जो है असंख्य योनियों में भटकता रहेगा, जहां से छुटकारा पाना असंभव है। कठिन, असंभव तो नहीं है परंतु कठिन अवश्य है। हम लोग संसारिक बातों में अपने आप को इतना उलझा लेते हैं, संसारिक बातों के विचारों में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, छुटकारा पाना चाहें तो भी नहीं पा सकते। इसके विपरीत यदि मन हमारा, जो हमारा मानव जीवन है, विद्वानों में, सन्यासियों में, महापुरुषों की संगति में जाएगा, तो मानव का जो जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष, वो उसको जरूर प्राप्त कर लेगा। पर हम लोग अन्य अन्य कार्य कर लेते हैं, परंतु सत्संग में नहीं जाते हैं, सन्यासी साधुओं, ये महापुरुषों की संगति में नहीं जाते हैं, तभी हमारा मन जो है इधर उधर भटकता रहता है और हमारे कार्य चलते जा रहे हैं, हमें 1 मिनट का भी समय नहीं है, और फिर हम शिकायत करते हैं जी हमारा मन टिकता नहीं है। सर्वसाधारण लोगों का क्या कहना है? वो लोग कहते हैं कि सतयुग में मनुष्य की आयु दीर्घ हुआ करती थी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ करता था और लोग जो है जीवन आनंद से प्राप्त करते थे, अपना बहुत आनंद पूर्वक रहते थे। कलयुग में जी थोड़ा सा आयु में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, इसलिए थोड़ी आयु में थोड़ा जीवन का आनंद लेना चाहिए। परंतु वास्तविकता तो ये है कि सतयुग में लोग अत्यधिक समय अपना तपस्या किया करते थे, साधना में व्यतीत करते थे, परंतु कलयुग में लोग जो है भौतिकवाद की चकाचौंध में लगे रहते हैं, तपस्या और साधना से जीवन उनका दूर होता जा रहा है। तो कहते हैं वास्तविकता ये बात है कि कोई काल बुरा नहीं होता। जब हम लोग सात्विक गुणों से, सात्विक विचारों से भरे होते हैं, युक्त होते हैं, यज्ञ करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय संतोष रूपी, समर्पण रूपी धनों से युक्त होते हैं, तो हम सतयुग में रह रहे होते हैं। बड़ी सरल सी बात है। और जब हम लोग क्या है, अपने दुष्ट भावनाओं से जब हम लोग युक्त रहते हैं, कुवासनाओं से, कुचेष्टाओं से युक्त अपने आप को कर लेते हैं, लिप्त कर लेते हैं, यही हमारे लिए कलयुग है। तो कोई भी काल, कोई भी समय बुरा नहीं है। अपने आप को सात्विक विचार वाला बनाइए, सात्विक आहार वाला हमें बनाना है, अच्छी बातों के प्रभाव में रहना है, यज्ञ भजन संध्या आदि में अपने आप को लगाना है, तो अपने आप ही आपका युग, आपका समय आपको अच्छा लगेगा। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जीवन की आप सब जानते हैं 4 अवस्थाएं हैं, उनको 4 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। पहला जो ब्रह्मचर्य है वो 25 वर्ष तक का विद्या अध्ययन का समय माना जाता है और यही आयु जो है ज्ञान प्राप्त करने की है। और कहते हैं बचपन में जो संस्कार जीव के मन में पड़ जाते हैं वही बड़े होकर फलते फूलते हैं। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में विचरण करना।
अर्थात ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। इस आयु में विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता तो बड़े होकर क्या करोगे आप? इस विद्या को प्राप्त करने में आपको अत्यधिक कठिनाई होगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाल्यावस्था में जितने संस्कार आपको का प्रभाव आपके मन पर पड़ जाता है वही आपके लिए लाभदायक है। और हम कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। तो जितना आपका प्रभाव छोटेपन में पड़ेगा उतना बड़े होकर आपको बहुत कठिनाइयां होंगी। तो इसलिए पहले के लोग अपने बच्चों को अपने से दूर गुरुकुलों में या आश्रमों में भेजा करते थे, जहां उनका शारीरिक भरण पोषण होता, संसारिक उनको आचार व्यवहार की शिक्षा दी जाती और उनके साथ उनको आध्यात्मिक विद्या भी दी जाती थी। क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ यही होता था, आत्मज्ञान को प्राप्त करना। आज समय बदल चुका है। आज हम बच्चों को घर में ही शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे ऐसे संस्कार ले रहे हैं जो मतलब अपनी उम्र से बड़े उनको मिल रहे हैं। और कई बार तो व्यवहार घर में ही इतना खराब हो जाता है आपस में कि बच्चे को ना आध्यात्मिक विद्या मिल पाती है, ना ही शारीरिक पोषण हो पाता है। अब जो दूसरी है, हमारा जो विभक्त किया है हमारा, उसका गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए विद्वानों की सेवा, अतिथियों का सेवा सत्कार करते हैं और दीन दुखियों की सहायता करना, ये आपका परम कर्तव्य है। अब इस आश्रम में पंच महायज्ञ भी किए जा सकते हैं और इसी आश्रम में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सभी संभव हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने इस आश्रम को सर्वोपरि आश्रम माना है। तीसरा आता है गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का अर्थ मन के विचारों को रोकना। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास, यानी कि चित्त की वृत्तियों को विषय विकारों से दूर करना। जब बचपन में ही आपके मन में बुरे संस्कार ना पड़ेंगे तो मन को इस आश्रम में लक्ष्य की ओर ले जाने में आपको देर नहीं लगेगी। धीरे धीरे जो वृत्तियां हैं उनको बदलने का रुख जो है आपका आध्यात्मिकता की ओर चला जाता है। क्योंकि आपने बचपन में संस्कार इस प्रकार लिए, आपका जीवन अध्यात्म की ओर मुड़ गया। आपके मन को दुष्ट संस्कारों से मोड़कर आपका जीवन आत्मज्ञान की ओर लगना ही वानप्रस्थ है। फिर चौथा जो आता है हमारा संन्यास आश्रम होता है। आप पढ़ चुके हैं या पढ़ते भी हैं इस बारे में, सभी आर्यजन बैठे हैं। इसमें शुद्ध भावनाओं से युक्त आत्मज्ञान में, आत्मभाव में स्थित होना, ये गृह संन्यास का एक सबसे उत्तम लक्षण माना जाता है। जब जीव जो है मन पर विजय प्राप्त कर ले, इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को मन से मुक्त कर दे, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा से मुक्त हो जाए, तो यही संन्यास है। इस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने इन चार अवस्थाओं को वास्तविकता के तत्व को ऋषि मुनियों ने हमें समझाने का प्रयास किया कि आत्मज्ञान जो है हमारा जीवन का विशेष लक्ष्य है और वास्तविक विद्या वही विद्या होती है जिसको ग्रहण करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर ले। आज हम इस प्रकार की शिक्षा न दे पा रहे हैं बच्चों को। हम अपनी शिक्षा को संस्कार से दूर करते जा रहे हैं। जब तक हम शिक्षा को संस्कार के सहित नहीं देंगे वो शिक्षा का कोई लाभ नहीं होगा। केवल शिक्षा देने से क्या है, बच्चा बिना धर्म के, बिना संस्कारों के शिक्षा दोगे, बच्चा डाकू बनेगा। आप बच्चा देख लीजिए बहुत गलत राह पर चलने लग जाएगा। तो इसलिए संस्कार सहित शिक्षा हमें देनी है। और फिर कहते हैं जिस प्रकार बादल के फट जाने पर सूर्य का दर्शन होता है और दर्पण की मैल जो है स्वच्छ करने पर हमारे मुख का प्रतिबिंब बिल्कुल हमें स्वच्छ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार संसारिक बंधनों से युक्त हमारा जो ये आत्मज्ञान है हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो हम क्यों अपने आप को हर समय संसारिक बंधनों में बांधें? अपने आप को हम आत्मज्ञान से क्यों ना भर दें? हम लोग आध्यात्मिकता की तरफ क्यों ना मुड़ जाएं? क्यों ना अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने का प्रयास करें? स्वामी देव दयानंद जी महाराज ने अपना जीवन पूरा होम कर दिया, अपने आप को पूरा एक इतना मम्मा की भावना उनके जीवन में थी। तो हम भी इस चीज से मुक्त होएं, अर्थात संसारिक कार्यों से ऐसे भागिए मत। संसारिक बंधनों से हटने का, मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि आप भागकर वन कंदराओं में चले जाएं। आप अपने आप को संसार में रहकर मोह की, त्याग की भावना को रखते हुए आप अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हैं। और यही वास्तविकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी कर लूं, सारे काम निपटा लूं, फिर आराम से ध्यान करने बैठूंगा, तो ये पहले जिम्मेदारियां पूरी करने, फिर प्रभु का स्मरण करूं, ऐसे लोग भ्रम में जी रहे हैं।
संसार के कार्य हम पूरे कर लेंगे सभी, ऐसा सोचना हमारी भूल है। तो इस संसार के कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे। प्रभु नाम का स्मरण उठते बैठते चलते फिरते करते रहिए। जिम्मेदारियां भी अपनी करिए, गृहस्थ आश्रम से दूर मत हटिए, परंतु संस्कार अपने अपने ऊपर, अपने बच्चों पर इस प्रकार आप डालिए कि आपके सभी कार्यों के साथ उस परम पिता परमात्मा का भी नाम स्मरण होता रहे, उसका धन्यवाद हम ज्ञापित करते रहें। अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष की ओर हम जाएं। अब एक छोटा सा दृष्टांत ये है, एक बार एक राजा अपने घोड़े पर जंगल की तरफ चला गया। अब उस राजा ने अपना भेष बदल रखा था, साधारण कपड़ों में था। अब जंगल की तरफ जब गया तो उसके घोड़े को प्यास लगी। उस समय एक खेत उसने देखा, उस खेत में एक रहट चल रहा था जिससे पानी निकलता है। राजा उस घोड़े को रहट के पास लेकर गया, परंतु टक 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 की आवाज, जो कोलाहल था, जो आवाज आ रही थी, उससे उसका घोड़ा थोड़ा बिदक रहा था, पानी नहीं पी पा रहा था। राजा साधारण वेश में था, उसको कोई पहचान नहीं पाया, तो उसने पास खड़े किसान से बोला, भाई इस टक टक की ध्वनि को सुनकर मेरा घोड़ा डर रहा है। इस बात को सुनकर किसान ने अपने ऊंट को रोक दिया, क्योंकि ऊंट उस पानी को, रहट को खींच रहा था। ऊंट के रुकते ही टक टक की ध्वनि आनी बंद हो गई और साथ में पानी आना भी बंद हो गया। अब ये देखकर राजा ने बड़ा चकित हुआ। उसने बोला, भाई पानी तो आने दो, पानी का क्या कसूर है, पानी नहीं आएगा तो मैं क्या पिलाऊंगा अपने घोड़े को। तो उस किसान ने ऊंट को फिर चला दिया। अब जब चलाया तो पानी तो आने लगा, परंतु टक टक की ध्वनि फिर से आने लगी। राजा ने कहा, पानी तो आना चाहिए, टक टक की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। किसान ने कहा, महाराज कि आपको यदि पानी चाहिए तो टक टक की ध्वनि तो आएगी आएगी। यदि आपने अपने घोड़े को पानी पिलाना है तो इस टक टक की ध्वनि के होते हुए ही पानी पिलाना होगा। तो कहने का अभिप्राय सरल सा यही है, संसार के कार्य चलते रहेंगे। ये मत समझिए कि हम संसार के कार्य सारे निपटा कर प्रभु के ध्यान में बैठेंगे, प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, पूरी आयु हमारी व्यतीत हो जाएगी, परंतु संसार के कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए संसारिक कार्य करते हुए अपने मुख से उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते रहिए, ध्यान में लगे रहिए, इसी में हम सबका कल्याण है। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी भी क्षण भंगुर जीवन जो है कभी भी समाप्त हो सकता है, कार्य कभी खत्म नहीं होते। बैठे बैठे व्यक्ति चला जाता है, संसारिक कार्य वहीं रुक जाएंगे। संसारिक कार्य तो आपके खत्म होने वाले नहीं हैं। हमारा सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि हमें उस परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर जाना है, अपने जीवन के ध्येय को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को एक पुरुषार्थ की तरफ लेकर जाना है। तो इसके लिए आपको पूरा प्रयास हम सबको मिलकर करना है अपने जीवन में कि कार्य चलते रहें, परंतु ईश्वर का ध्यान हमारे जीवन से ना हटे। तो आइए उस परम पिता परमात्मा का ध्यान अपने तक रखते हुए अंदर ही अंदर मन में उसका धन्यवाद करते रहें बारंबार। ये समय कहाँ दौड़ता जा रहा है कुछ नहीं पता, कब समय किसका आ जाए। तो दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम का नाम तू जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पे प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पे प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा के कोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। चल भाई कर ले प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। इस शक्ति ने जहां करोड़ों, इस शक्ति ने जहां करोड़ों लोगों का दिल मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा,
हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दसों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा के बाजे। दसों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा के बाजे। बता रे दुनिया वाले तुमने, बता रे दुनिया वाले तुमने कितना पुण्य जोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी। ना जाने कब टूट पड़े, ना जाने कब टूट पड़े माथे पे काल हथौड़ा। दौड़ा जाए रे समय का दो घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। प्रभु का नाम तू जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी। धन्यवाद दीदी। बहुत ही बढ़िया। समय भी चल रहा है, दौड़ रहा है, तो अपने केडी जी आप भजन लीजिए माता हाँ जी। जी, हाँ जी, कृष्ण जी के एक जन्म का भजन बोल रहे हैं। भादों का महीना घटाए घन घोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। जेल में जन्मे कृष्ण कन्हई, लीला प्रभु ने देखो कैसी रचाई। खुल गए सारे ताले ना चला कंस का जोर। खुल गए सारे ताले ना चला कंस का जोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। इत मथुरा उठ गोकुल प्यारा, बीच में बह रही यमुना की धारा। धन्य हो गई यमुना जब देखे नंद किशोर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। भादों का महीना घटाए घन घोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। नंद रानी खुश बड़ी नंद हर्षाए, तीनों लोकों के स्वामी घर में आए। इतना प्यारा लल्ला ना देखा कोई और, हो इतना प्यारा लल्ला ना देखा कोई और। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। अन्न धन गौए नंद बाबा बांटे, सोना चांदी हीरे मोती दाऊ लुटावे। ढोल नगाड़े बाजे नई खुशियों का है ठौर। आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। भादों का महीना घटाए घन घोर, आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। हो आधी रात को जन्मे देखो नटवर नंद किशोर। धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद। बहुत सुंदर। लीलाबेन जी आप प्रारंभ करें अपना वक्तव्य। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, इसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदयों में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, वंदनीय माताएं, धर्म प्रेमी सज्जना, अभी अभी सुंदर चर्चाएं हम सुन रहे थे, बहुत ही ईश्वर के विषय में, मानव जीवन के विषय में। तो हमारा जो विषय चल रहा है ईशोपनिषद के विषय के मंत्र के ऊपर, तो जो मंत्र हमने पहले थोड़ा ही लिया था, तो आज उस मंत्र पर ही हम चर्चा करेंगे। पुष्येन कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यू रश्मिन समु तेजो यते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ओ आशावशो पुरुषः सो अस्मि। इस मंत्र में ईश्वर को अनेक विशेषणों से पुकारा गया है। पहला विशेषण है पुष्येन। पुष्येन यानी पुष्टि करता, ईश्वर पुष्टि करता है। उसकी मैंने व्याख्या की थी कि ईश्वर किस प्रकार पुष्टि करता है। ईश्वर हमारे शरीरों की भी पुष्टि करता है, संसार के प्राणियों की, वनस्पतियों की, सारे पदार्थों की पुष्टि करता है। हम त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र में भी बोलते हैं कि पुष्टि वर्धनम, पुष्टि को बढ़ाने वाला है ईश्वर। तो आगे का विशेषण है एकर्षे, एकमात्र ऋषि है। ऋषि क्या होते हैं? मंत्र दृष्टा होते हैं। और ईश्वर एक ऐसा ऋषि है, वो सबसे बड़ा मंत्र दृष्टा है। किसी ऋषि ने किसी मंत्र का दृष्टा है, लेकिन ईश्वर तो सब मंत्रों का दृष्टा है, सबसे ज्यादा ज्ञाता है, सबसे ज्यादा दृष्टा है, वो सबसे ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने वाला है। ज्ञान ईश्वर के बराबर किसी का ज्ञान नहीं है, ईश्वर में इतना ज्ञान। और आगे की विशेषण है यम। यम यानी नियंत्रण में करने वाला, सारे संसार को नियंत्रित में रखा हुआ है। सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, सबको ईश्वर ने अपने नियंत्रण में रखा हो। हम ईश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। आगे बताया सूर्य। सूर्य यानी तेजस्वी, जो सूर्य हमारा तेज देता है, प्रकाश देता है। तो ईश्वर के अंदर ज्ञान का प्रकाश है। ईश्वर भी सूर्य है और सूर्य गति करता है, या वास्तव में तो पृथ्वी गति करती है, लेकिन हमें सूर्य गति करता हुआ दिखता है। तो ईश्वर गति करता है क्या? हमारे मन में प्रश्न होता है। तो आगे एक मंत्र आया था ना, जो हमने उस मंत्र की व्याख्या की थी, चौथा मंत्र इसमें आया था ना, तदेजति तन्मेजति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य बाह्यता। नहीं, वो वाला नहीं। अनेज एकम मनसो जवियो, ठीक है। पूर्वमर्शक, जो ईश्वर है मन से भी वेगवान है। मनसो जवियो यानी जहां हमारा मन कितना वेगवान है। आज हम यहाँ बैठे, एक सेकंड भी नहीं लगता हमारे मन को अमेरिका में पहुंचते हुए। विचार करते हैं तो मन कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन ईश्वर तो पहले से पहुंचा हुआ है वहां भी। और ईश्वर अनेसदेकम मनसो जवियो नैनम देवा अप्रुवनम। नैनम देवा अप्रुवनम, ये बहुत अच्छी उसकी परिभाषा की स्वामी गुरुदेव जी ने यज्ञ उपरांत प्रवचन के बाद, कि देवा यानी इंद्रियों से वो प्राप्त नहीं होता। जैसे शब्द पहले हमें प्राप्त नहीं था, हमने शब्द किससे प्राप्त किया? कर्ण इंद्रिय से हमने शब्द प्राप्त किया। इंद्रियों से हमें शब्द प्राप्त होता है।
इसी प्रकार रूप हमें प्राप्त नहीं था, संसार में रूप था, लेकिन हमारी नेत्रेंद्रिया ईश्वर ने जब हमें दी तो हमें उससे रूप को प्राप्त किया। तो रस हमें प्राप्त नहीं था, रस था संसार में, लेकिन जब ईश्वर ने हमें रसेंद्रिया दी तब हमें उस रस को प्राप्त किया। लेकिन ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है कि इंद्रियों के माध्यम से हम उसको प्राप्त करें। ईश्वर तो पहले से ही आत्मा को प्राप्ति है, ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है, आत्मा के अंदर भी विद्यमान है, प्राप्ति है। तो इसी प्रकार बताया गया कि वाक शक्ति, जो हमारी वाक शक्ति है ना, इससे ईश्वर का कुछ हम अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण आदि से उसका वर्णन कर सकते हैं। ईश्वर के कई प्रकार का वर्णन वेदों में आया है, वो हम उसकी परिभाषा करके, उसकी ट्रांसलेट करके उसका वर्णन करते हैं। ईश्वर ऐसा है, वैसा है, वो करता है, उसकी स्तुति करते हैं भजनों के माध्यम से। सब ईश्वर को कुछ अंशों में हम ईश्वर को हमारी वाणी से उसको प्राप्त, उसका गान कर सकते, कुछ ही अंशों में, ऐसा बताया। और मन से भी हम चिंतन मनन करते हैं, इसके माध्यम से भी हम कुछ ही अंशों में प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में तो ईश्वर अनंत है, इसके गुण कर्म स्वभाव भी अनंत है, ईश्वर को हम कुछ ही अंशों में प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य जैसे गति सूर्य की होती है, इसी प्रकार परम पिता परमात्मा हर जगह पर हमें प्राप्त है। ये पहले से पहुंचा हुआ है, ज्ञान गमन प्राप्ति गति का जो वो होता है ना, इसमें प्राप्ति यानी ईश्वर सब जगह में प्राप्त है। बाद में जो विशेषण बताया वो है प्रजापति, वो प्रजाओं का पति है, हम उनकी प्रजा है, वो हमारा पति है, वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा है। तो हमारा पालन करता है, पोषण करता है, हमें उत्पन्न करता है, हमें शरीर देता है, शरीर के लिए सारे विषय देता है, सारी साधन देता है, सारे इंद्रियां देता है और संसार के सारे पदार्थों को देता है। वो प्रजापति है, वो हमारा पालन करता है। आगे उपासक क्या कहता है, व्यू यानी रचना करने वाला है। जैसे चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, ऐसे युद्ध के अंदर व्यू बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। तो परम पिता परमात्मा संसार में व्यू करने वाला है, वो रचना करने वाला है। आगे शब्द आया रश्मि समूह, रश्मि यानी जो जैसे सूर्य की रश्मियां होती है, किरणें होती है, इसी प्रकार संसार के अंदर परम पिता परमात्मा के ऐश्वर्यों की रश्मियां भरी पड़ी है। वो उपासक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परम पिता परमात्मा, इन ऐश्वर्य की रश्मियां, ईश्वर का ऐश्वर्य इतना लुभावना है। जैसे सूर्य जब सुबह में उगता है उसी समय हम उसको देख पाते हैं, क्योंकि उसकी रश्मियां कोमल होती है, थोड़ी कम होती है, सूर्य को भी हम देख सकते हैं। और जब दोपहर आते आते तो इतनी तीव्र हो जाती है कि हमारी आंखों में चुंभने लगती है, हम उसको देख नहीं पाते। इसी प्रकार हम कोई रास्ते में जाते हैं, कोई गाड़ी सामने से आती है तो उसकी हेडलाइट का प्रकाश इतना होता है कि हम उसका जो स्रोत है गाड़ी, उसको देख नहीं पा रहे। जैसे सूर्य की रश्मियों में हम सूर्य को नहीं देख पा रहे, हमारी आंखें चुंधिया जाती है, इसी प्रकार गाड़ी की जो रश्मियां प्रकाश है हेडलाइट की, वो इतनी होती है कि हम गाड़ी को देख नहीं पा रहे कि उनका स्रोत क्या है। तो उपासक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, तेरा ऐश्वर्य इस संसार में इतना भरा पड़ा है, इतना ऐश्वर्य आकर्षक है, लुभावना है, इतना तीव्र है कि मेरा मन इसके पीछे छुपा हुए ईश्वर को नहीं देख पा रहा। मैं इस संसार की रश्मियों में बेचैन हो जाता हूँ, इसमें ही मेरी आंखें चुंधिया जाती है, मैं तेरे तक पहुंच ही नहीं पाता। तो तेजो यते रूपम, वो तू उसको समेट ले, समूह यानी समेट ले, थोड़ा एक और कर दे। ऐसे तो भौतिक रूप से तो एक और नहीं होगा, लेकिन मेरी बुद्धि जो संसार में सुख लेने वाली मेरी बुद्धि है, जो मेरे अंदर जो अविद्या पड़ी है कि इन संसार के ऐश्वर्यों में ही मुझे सुख लेना है, वो मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दे, ऐसी बना दे कि मैं तुझे
यजोयतम रूपम कल्याणतमम, तेरा जो कल्याणतमम रूप है उसको मैं देख पाऊं। संसार के अंदर अनेक लोग हमारा कल्याण करने वाले हैं, अनेक हमारा उपकार करते हैं, अनेक हमारा हित इच्छते हैं। हमारे माता पिता हैं, आचार्य हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, वो हमारा कल्याण कर सकते हैं, कल्याण तर हो सकते हैं, लेकिन कल्याण तमम तो एकमात्र ईश्वर। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि माता पिता, गुरु, आचार्य, सगे संबंधी, मित्र, कोई भी हमारा जो कल्याण करेगा ने, उनके पीछे उनका कुछ ना कुछ ही छुपा हुआ है। लेकिन ईश्वर एकमात्र ऐसा है कि जो हमारा कल्याण करता है ने, उनके पीछे उनका कुछ भी नहीं छुपा है। वो केवल मात्र जीवात्माओं के कल्याण के लिए कल्याण करता है। तो ईश्वर को कल्याण तमाम जो डिग्री होती है ने, पॉजिटिव, सुपरलेटिव आदि, ऑपरेटिव, तो ईश्वर कैसा है? सबसे कल्याण करने वाला। तो ईश्वर के इस कल्याण तमाम रूप को मैं देख पाऊं, तते पश्यामि, मैं देख पाऊं। वो आवशो पुरुष सो अहम अस्मि। अभी ईश्वर कह रहा है, अभी तक उपासक बोल रहा था, अभी ईश्वर बता रहा है कि तू तुझे यम कह रहा है, तू जो जिसे सूर्य कह रहा है, तू जो जिसे प्रजापति कह रहा है, वो कौन है? यो अशो अशो पुरुष सो अहम अस्मि। वो कोई दूसरा नहीं है, वो पुरुष मैं हूं, मैं ही हूं। तो हमें जो संसार के अंदर जितना भी ऐश्वर्य है, जो भी सुख हमें प्राप्त हो रहा है, वो सुख तो है हमारे लिए, लेकिन हमें इस सुख को, इस ऐश्वर्य को एक और करके हमारी बुद्धि को ऐसी बनानी पड़ेगी, हमारे ज्ञान को इतना शुद्ध विशुद्ध बनाना पड़ेगा कि हम ईश्वर के कल्याण तमाम रूप को देख पाए। तो मंत्र की इस भावना है। और आगे का मंत्र अभी हम लेंगे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं फिर से इनका फिर से जरा बता दीजिए भावार्थ। किसका? यही मंत्र का पुनरावर्तन कर दीजिए, ये भावार्थ यही मंत्र। हाँ ठीक है। पहले तो ईश्वर को सब विशेषणों से पुकारा गया, वो तो ठीक है। बाद में उपासक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जो तेरा जो ऐश्वर्य रूपी रश्मियां हैं संसार में, बहुत आकर्षक है ईश्वर का। ईश्वर ने बहुत सौंदर्य भरा है, हर एक के अंदर सौंदर्य भरा है। पशु पक्षियों का शरीर देखो, वनस्पतियों को देखो, फूलों को देखो, पुष्पों को देखो, मनुष्यों को देखो, कितना सुंदर बनाया है। उनका रश्मि समूह यानी उनका ऐश्वर्य बहुत सुंदर है। लेकिन उपासक प्रार्थना कर रहा है कि इस रश्मि समूह में ही ना गुजर जाऊं, इसमें ही ना रह जाऊं, मुझे इसके आगे उसका जो स्रोत है, जैसे गाड़ी का स्रोत हेडलाइट से हम दिख नहीं रही गाड़ी, सूर्य को उनकी किरणों के कारण हम देख नहीं पा रहे, इसी प्रकार ईश्वर के जो सांसारिक सुख का ईश्वर है, उसके पीछे जो उसका स्रोत है, ईश्वर को हम देख नहीं पा रहे। इसलिए उपासक प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर मेरी बुद्धि को ऐसा बना दो, ऐसे तो रश्मि समूह उसको समेट लो, यानी एना कहने का भावार्थ है कि समेट लो यानी मेरे लिए समेट लो, यानी मेरी बुद्धि में उसको एक और हटा दो, और मुझे आपका जो सच्चा स्वरूप है, कल्याण तमाम स्वरूप है, वो उसको मैं देख पाऊं। ठीक है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं पुष्यन् प्रावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो इस मंत्र में बताया गया हिरण्यमयेन, हिरण यानी सोना, सोना को हम हिरण कहते हैं, जो चमकते पदार्थ है, सारे चमकते पदार्थ को हिरण्य कहा गया है। हम बोलते हैं ना हिरण्य गर्भ, जो मंत्र आता है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, हिरण्य गर्भ समवर्धताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत। जो चमकते हुए पदार्थ, ईश्वर का एक नाम क्या है? हिरण्य गर्भ। क्यों है? क्योंकि उसके गर्भ के अंदर, उसके अंदर ईश्वर गर्भ यानी इसके अंदर क्या है? सारे चमकते हुए पदार्थ,
सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, जितने भी चमकते हुए पदार्थ है सारे के सारे ईश्वर के अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है। ईश्वर से बाहर कोई विश्व का कोई भी पदार्थ नहीं है, सब हम ईश्वर के अंदर ही है। तो उसको कहा गया हिरण्य गर्भ। यहाँ कहा गया हिरण्यमय पात्रेण, जो चमकता हुआ पात्रेण, जो पात्र किसको कहते हैं, जिसमें कुछ वस्तु रखी जाए उसको हम कहेंगे पात्र। तो हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, सत्य का मुख, अपिहितम, अपिहितम का अर्थ है ढका हुआ है। हिरण्यमय पात्र थी, सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख ढका, अपिहितम, जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, उसी समय क्या बोलते हैं, अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा। तो ये पस्त्रण, उपस्त्रण, जो नीचे का आसन होता है, दर्भ होता है, उसको उपस्त्रण कहते हैं। और जब पिधानमसि, यानी हमारी जब हम बिस्तर में सोते हैं तो नीचे की चादर एक पस्त्रण है, और पिधानमसि यानी ऊपर ओढ़ने वाली चादर वो पिधान है। तो इसके बीच में हम सुरक्षित है। तो यहाँ इससे हम ढके हुए हैं, यानी इससे हम ढके हुए। तो यहाँ कहा गया सत्यस्यापहितम, अपिहितम, अपिहितम मानी ढका हुआ है, सत्यस्य, सत्य का, मुखम, मुख। हिरण्यमय पात्र थी, चमकते हुए संसार के, जो भी मैंने अभी बताया ना, आगे के मंत्र में आया था, हिरण्यमय पात्र ने, यानी चमकते हुए ईश्वर के जो ऐश्वर्य है संसार में, उससे सत्य का मुख ढका हुआ। अभी हम सोचे कि कौन कौन से चमकते हुए चीजें हैं जिससे सत्य ढका हुआ है। तो पहले तो हम एकदम नजदीक से सोचे तो हमारा ये शरीर, शरीर के बारे में हम सोचे तो शरीर क्या है, शरीर के अंदर क्या है। ऊपर तो हमें त्वचा ही दिखती है, भगवान ने कितनी सुंदर रचना की है कि इस त्वचा से सारा शरीर ढका हुआ है। इस त्वचा से क्या अंदर है ये पता नहीं चलता हमें। वास्तव में शरीर कैसा है, वास्तव में तो अंदर रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, अस्थि है, हड्डियां है, अस्थि यानी हड्डियां, वीर्य आदि सारी सप्त धातुएं अंदर है, सारे अवयव अंदर है, मांस है, खून है। यदि एक मांस का लोथड़ा हमारे सामने पड़ा हो, खून पड़ा हो, तो हम कहेंगे हड्डियां पड़ी हो तो हटाओ इसको, हम देखना भी नहीं चाहते। अंदर का रूप हमारा कैसा है, अंदर का रूप हमारा ऐसा है। लेकिन ईश्वर ने एक चमड़ी की आवरण करके, त्वचा का आवरण करके इस प्रकार ढक के रखा है कि हमें उसका वास्तविक रूप दिखाई नहीं दे। और हम संसार के अंदर चमड़ी के पीछे पागल है, बाहर का रूप देखकर ही शरीर के पीछे पागल है। चमड़ी और डमड़ी दोनों के पीछे पागल। हाँ तो अंदर की वास्तविकता हमारे जब यहाँ आते हैं ना, तो स्वामी जी आदि कहते हैं कि सूची को असूची समझ रहे, असूची को हम सूची समझ रहे। अंदर का शरीर कैसा अपवित्र है। हम शरीर में देखते तो क्या होता है, हर एक से, आंखों से, नाक से, मुंह से, लार से, कान से, त्वचा से, मलमूत्र इंद्रियों से क्या निकल रहा है, कचरा ही निकल रहा है। अंदर भी ऐसा स्वरूप है। तो ये क्या है, अशुचि है, लेकिन उसको हम पवित्र मानकर पड़े हैं। आजकल कहते हैं ना कि जो किसी के प्रति राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, पागल हो जाते हैं, वो शरीर के पीछे कुछ भी नहीं देखते, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखते। कैसी कैसी कार्य होते हैं, हम समाचारों में पढ़ते हैं ना। तो इसी प्रकार ये बताया गया कि शरीर की जो वास्तविकता है उसको हमें देखना चाहिए। यहाँ तो ये कहते हैं कि शरीर से आसक्ति को दूर करने के लिए उसको एक कंकाल के रूप में देखो, शरीर के रूप में ना देखो। हम तो अच्छे फोटो आदि टंगवाते हैं तो कैसे अच्छी सी फोटो आनी चाहिए, अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, सब कुछ अच्छे हो तो अच्छी दिखनी चाहिए। लेकिन अंदर की जो वास्तविकता है उसको हम देख ही नहीं पा रहे, बाहर के रूप में ही हम पागल, बाहर के रूप में ही जा रहे हैं। ऐसे ही वो मैंने एक पढ़ा था
कालिदास के विषय में था शायद। वो एक जगह स्थान पर जा रहे थे तो कुएं पर कई स्त्रियां पानी कुएं में से निकाल रही थी, उनको प्यास लगी थी तो उन्होंने पानी मांगा तो एक बहन ने पानी पिलाया। ऐसे पहले ऐसे हाथ ऐसे करके पानी पीते थे, तो ऐसे पानी पीते पीते वो उनको देखने लगे। उनको देखकर इतना मोहित हो गए कि जब वो बेटी अपने घर चली गई पानी लेकर, पानी का घड़ा लेकर, तो उसके पीछे पीछे गए। तो उनके पीछे गए तो उनकी माँ ने अतिथि आया ऐसा मानकर उसकी अच्छी सी आगता स्वागता की, पानी दिया, भोजन दिया, सब कुछ दिया। अभी क्या चाहते हो यहाँ? तो लेकिन उनके मन में विचार आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके पीछे पागल हो गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक लोखंड का सुइया दीजिए और अपने सुइये से अपनी दोनों आंखों को फोड़ना कि मेरी आंखें इस रूप के पीछे कितनी पागल हो गई, मैं अपना जो मार्ग था उससे फिसल गए। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों का दोष नहीं होता, इसमें मन का दोष होता है। इंद्रियां तो अच्छा रूप भी देखेंगी, बुरा रूप भी देखेंगी, लेकिन यदि हमारे मन में कोई विकार नहीं होगा तो कोई नहीं। इसकी एक बात, एक सन्यासी बाजार से गुजर रहे थे और एक बेटी अपने लंबे लंबे बालों को जो सुखा रही थी, बहुत ही स्वरूपवती थी, रूपवान थी। तो सन्यासी ने ऐसे ही अनायास उनकी ओर देखा और एक ही टस से थोड़ी देर देखते रहे। तो उस बेटी ने कहा कि भगवे कपड़े तो पहन लिए लेकिन अंदर से तो अभी वैराग्य हुआ नहीं, और ऐसे सन्यासी बनकर भी ऐसे किसी के पीछे ऐसे देख रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको? तो उस सन्यासी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि बेटी गलत ना मानना, मैं तो ईश्वर के सौंदर्य को देख रहा था कि वाह ईश्वर तेरा सौंदर्य कितना है, तुझने कितनी अच्छी अनुपम रचना की है। तो अपनी दृष्टि जैसी होगी वैसा दिखेगा। कोई भी सुंदर वस्तु के पीछे ईश्वर को हम लाएंगे तो इसमें कोई अपवित्रता नहीं आएगी। हम ईश्वर को नहीं लाते। हम कोई भी वस्तु सुंदर देखते हैं तो चित्र सुंदर देखते हैं तो उसके पीछे वो चित्र किसने बनाया है, ऐसा विचार जब हमारे मन में आएगा। इसी प्रकार संसार के सौंदर्य को देखकर जब हम ईश्वर को, उसके रचनाकार को पीछे लाया, उसको याद करेंगे, स्मृति में लाएंगे, तो हमारे मन में कोई विकार नहीं होगा। परमपिता परमात्मा ने तो सारी सृष्टि सुंदर बनाएगी, एक एक वस्तु सुंदर बनाएगी। तो दोष हमारा है, हमारा दृष्टिकोण का है। तो आगे बताए जो जैसे शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर शरीर की वास्तविकता छिपी है त्वचा के कारण। दूसरी बात, शरीर के अंदर आत्मा छिपा है। जब हम जन्म लेते तब से आत्मा शरीर के साथ हमारा संबंध जुड़ा है और इसी संबंध में हम जी रहे हैं कि शरीर भाव में जी रहे। सुबह से उठते हैं तो शरीर को पवित्र करने में लगे हैं, दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, शौच जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करते रहते हैं शरीर को स्वच्छ बनाने में। कभी आत्मा के बारे में सोचा कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या शरीर हूं? आत्मा को स्वच्छ करने के लिए हमने क्या किया? शरीर की पुष्टि के लिए भोजन खाते, नाश्ता खाते, भोजन खाते, अलग व्यंजनों के पीछे भागते हैं कि आज वो खाइए, वो चाहिए, वो चाहिए। लेकिन कभी आत्मा की भूख के बारे में सोचा? आत्मा की भूख हमें लगी? जब आत्मा की भूख लगेगी, उसका एहसास होगा, तब जाके हम साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग सुनेंगे, कुछ आत्मा की उन्नति के बारे में सोचेंगे। हमारी वास्तविकता शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो शाब्दिक रूप में तो हम सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन हमारे कहते हैं ना स्वामी जी लोग कि तत्व ज्ञान हमारा कब बनेगा? हम वास्तव में शरीर भाव में जी रहे हैं कि आत्म भाव में जी रहे हैं। जब हम आत्म भाव में जिएंगे तो कोई भी विषय के प्रति हम आकर्षित नहीं होंगे, कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। हम आत्मा की तुष्टि के लिए हमें स्वाध्याय अच्छा लगेगा, सत्संग अच्छा लगेगा, साधना अच्छी लगेगी। तो वास्तव में हमारा ये शरीर के अंदर आत्मा छिपा है। इस आत्मा को हमें जानना होगा।
जब हम आत्मा को जानेंगे, आत्मा के बारे में सोचेंगे, तब जाके हमारा ना कोई भय रहेगा, ना कोई चिंता रहेगी, ना सांसारिक दुख रहेंगे, ना सांसारिक संबंधों में हमें इतना रस रहेगा। तो इसी प्रकार दूसरी तीसरी बात हम लिखते हैं, 5 बज गए तो यहाँ पूरा कर दे या आगे का बात में, ठीक है। बहुत बढ़िया। आत्म भाव अंदर की ओर चले, हाँ बाहर दुनिया है, संसार है, तो संसार का प्रभाव रहेगा। तो आंखें बंद करने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और वही सच्ची यात्रा है। मूल अपनी यात्रा अंदर की ओर, बाहर की ओर तो व्यवहार चलाने के लिए जरूरी है। बहुत बढ़िया। और संध्या करवाते समय कहते हैं ना कि पहले ये अपने स्वरूप के बारे में सोचो, मैं एक आत्मा हूँ, ना पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ, ना किसी जो भी मेरे शरीर के साथ संबंध है, माँ पिता भाई बहन आदि का शारीरिक संबंध, मैं एक आत्मा हूँ। इस अपनी जीवात्मा के स्वरूप के बारे में सोचो। उपासना करते पहले जो उपासना की सज्जा करवाते हैं ना तैयारी, उसमें भी अपने जीवात्मा के स्वरूप के बारे में, जो भी हम पुरुष स्त्री आदि जो तो शरीर का धर्म है, मैं तो अंग मात्र हूँ। इसी प्रकार आत्मा के स्वरूप के बारे में जब हम सोचेंगे और आत्मा को ही प्राधान्य देकर ही हम ईश्वर की उपासना करेंगे, तो हमारी ईश्वर की उपासना अच्छी हो। हमारा व्यवहार जगत है, जो कुछ सोचते हैं करते हैं, उसकी मेन स्विच अंदर है, बाहर नहीं है। आंख नहीं है, आंख को बंद करने के लिए जो स्विच अंदर है, हमारे अंदर मन बुद्धि के अंदर है, तो वही चलानी है। बाहर नहीं विशेष जाना है। अंदर की ओर जाने के लिए बाहर जाना पड़े बात अलग है, लेकिन मुख्य बोध नहीं, प्रतिबोध की ओर जाना है। बोध करना भी जरूरी होता है, लेकिन प्रतिबोध अंदर की शक्ति से, अंदर के साधनों के द्वारा अंदर की ओर चले। समय भी हो चुका है, तो अभी अपने शंकर जी इलाहाबाद अपने जयघोष और शांति पाठ वाले करवाए। शंकर जी, आज की व्याख्यान माला में बहन जी ने बहुत ही भाव जो ईशोपनिषद का है हम लोग के सामने रखा। आज की इस व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जयघोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद सरस्वती की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा सत्यार्थ प्रकाश गौ ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। कल 4 बजे मिलेंगे यही कक्षा में। रात्रि की या सुबह की कोई कक्षा नहीं है। कल 4 बजे पुनः मिलते हैं। आचार्य नागेश जी।